नमस्ते। शुरू करें सर? प्राचार्य सर? Yes, sir, we can start. ओके। संत Sir, we can गोंसालो start. गार्सिया। ओके ओके सर। संत गोंसालो गार्सिया महाविद्यालय के स्पर्धा परीक्षा अध्ययन एवं मार्गदर्शन केंद्र के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सोमनाथ विभूति सर, उपाध्यक्ष उप प्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम जी, प्रोफेसर युवान सखरानी जी, डॉक्टर चैतन्य वीर सर, प्रोफेसर पीट रोज मेनेजिस मैडम, प्रोफेसर मैकनोबल डिक्रूज जी, आप सभी सदस्यों का और पदाधिकारियों का मैं इस मीटिंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही ये प्रथम वर्ष सर बीए बीकॉम। हाँ, आवाज ब्रेक होतोय तुमचा। ठीक है, उसको ठीक करता हूँ। इस मीटिंग के लिए उपस्थित जितने भी छात्र हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सेल्फ साइंस से ये सभी छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं और अधिक संख्या में प्रथम वर्ष के छात्र हैं। 5-6 छात्र SY, RTY, MCOM का भी एक छात्र है कोई, वैसे 5-6 है, लेकिन ज्यादातर संख्या में प्रथम वर्ष के छात्र है इस मीटिंग में। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो गूगल फॉर्म हमने सभी स्टूडेंट को दिया था उसमें 60 रिस्पांस हमें मिले। तो उतने 60 रिस्पांस जो मिले हमको, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया कल, और उसमें सभी को ऐड किया है। और आज की मीटिंग हमने, ये हमारी पहली मीटिंग है, तो ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है MPSC UPSC का। इसमें ग्रुप 2 के सारे विद्यार्थी हैं, जिसमें प्रथम वर्ष के छात्रों की संख्या ज्यादा है सर। तो अभी जो ये 60 छात्र हैं, इनमें से हमको चयन करना है छात्रों का हमारे केंद्र के लिए। तो उसके लिए वो क्या परीक्षा हम एक लेने वाले हैं, तो उसकी सारी थोड़ी जानकारी जो है, मुझे लगता है वो देने से पहले मैं हमारे आदरणीय प्राचार्य सर से नम्र निवेदन करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित सभी छात्रों का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर। Yes, thank you, sir. Am I audible? हाँ सर। Yes, sir. Good evening, sir. Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening, everybody. I request at the outset to all of you to kindly mute your mics so that I will be audible to each and everyone. Respected Vice Principal Madam Sarita, convener of the UPSC and MPSC committee, Dr. Ramdas Tonde sir, Associate Professor Yvonne Sakrani madam, Professor McNoble, Professor Pretty Rose madam, Chaitanya Veer sir, and dear students. In fact, indeed it gives me a great pleasure to welcome you on this platform where we are going to launch a forum for preparation of competitive examinations. To be specific, UPSC and MPSC. Hope that you have heard of this. That is Union Public Service Commission and Maharashtra Public Service Commission. So dear students, you know that now you have just passed out your 12th standard and you have entered the senior college or the degree college. You are aware that everybody has his or her own academic dream. So some of you have joined BA,
some have joined BCom, some have joined self-finance courses, and like BMS, BAF, BBI, and BSc IT. Some of you have already in second year or even doing your post graduation. Normally, what happens when we take degree, we are, like we have certain goal in our mind, like why I am studying because I want to do this and that. So while doing so, one of the options explored by many students, to be precise, in lakhs and lakhs, is competitive examinations. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि राइट फ्रॉम द विलेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली, like first thing as far as our contact of the administration comes is a gram panchayat, then there is a panchayat samiti, then there is a jilla parishad, then there is a state secretariat, and then we have a central government or union government. So in the federal structure, we need administrators to run day-to-day business of the country, and therefore in order, ज्ञानेश्वर सरदार, सादर माइक बंद करो प्लीज. yeah, thank you, Janeshwar. So I was telling कि in order to run the day-to-day administration of the country, we need good officers. Okay, and therefore there is one of the options is Union Public Service Commissions and Maharashtra Public Service Commissions. But like you need thorough preparations for these kind of examinations. Some of you have joined this as sir has made an attempt with the help of his entire committee through a Google form, and you have enrolled that and you have shown your willingness and desire to pursue your career as far as competitive exams are concerned. At the outset, I'm very happy and I want to congratulate all of you for your decision, because bigger is the target, there is a bigger challenge, and it is always said that when the challenge comes, we need to shoulder the challenge, we need to accept the challenge. So on this backdrop, let me explain to you one thing, that our college, that is St. Gonzalo Garcia College of Arts and Commerce, we are going to start one permanent center for preparation of Union Public Service Commission and Maharashtra Public Service Commission examinations. Now this center is going to be on the first floor of a new building in the college, where we are going to provide all the amenities and facilities required to the students to prepare for such kind of examinations, absolutely free of cost. But this free of cost is not like anybody can join and anybody can take benefit of that. No, we want some seriously serious students who have decided at the end of the mind, yes, I will be an IAS officer, I will be an IPS officer, or I will be in IRS services, Indian Revenue Services. So group A services are there, group B services are there, or you can be preparing for Maharashtra Public Service Commission, and you can then join as a deputy collector in the administration at the state level. So the whole purpose of this meeting is to inform you regarding our efforts to start this center, and if some of you are really willing, really take a lot of pain and a lot of hard work for these kind of examinations, explore that possibility and provide an avenue to you so that you can come to that center. If you get selected, you will have free access to that center. You will get journals, books, periodicals, e-material, and like all these things you can access absolutely free of cost. Whole day if you want to sit there and study, it is possible in the center. All of the books you cannot buy at home, but all of the resources, and as an institution,
college can buy it. So only thing that you have to invest your own time. Number one, that you must have very strong passion for it. Without that, it is not possible. Having a dream is one thing, and having a dedication for achieving that dream is a second thing. So if you have D plus D, that is dream of becoming an IAS officer, followed by dedication to achieve that dream, and that will be possible only if you do a disciplined attempt for that. So there is a 3D formula of success at these kind of examinations. One, you must have dream. Second, you must be desirous for that dream, or you must have dedication and a lot of time you need to invest in. And third, you need to have proper discipline to achieve that dream. So if you are willing to do, then rest can be done by the college. We are there for you. We will support you. We are not behind you. We are with you. But the thing is that you need to understand, and you need to, like really ask this question to yourself. Am I made for this? Do I have that metal too? And if it is there, then sir and all the committee members present over here, they will explain to you like how exactly you have to go forward. You will have to write one exam. Based on your performance in that examination, we will select a few of you. Already we have chosen 26 students. Okay, and since you have now joined college, we thought like some of you may have that spark. Some of you must have that desire, and so let us provide this as an opportunity for you also, so that you can be integral part of this center. You can invest next 36 months of your life, that is next 3 years of your life, with this dream plus dedication plus discipline will be equal to the success. So thank you very much, Dr. Tonde and team competitive examination, for allowing me to open my mind in the beginning. And उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि फर्स्ट ईयर में हैं, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, कुछ सेकेंड ईयर्स के हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, जो पहले एग्ज़ाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए कुछ कारणवश, लेकिन अभी उनको उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, और वो एग्ज़ाम में अगर वो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं तो हमको एक अपॉर्चुनिटी उनको भी देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा बनना है, कुछ करके दिखाना है, और लाइक समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व होता है, उसे निभाने के लिए, उसे 100% निभाने के लिए आपके अंदर एक शक्ति अगर चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि IAS, IPS या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब आपके हाथ में पावर आती है तो आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। विद दिस इनिशियल वर्ड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, which sir and team will explain to you very shortly, and then we can go ahead. The center will be inaugurated on 30th of October at 4 p.m. The chief guest for inauguration function is none other than the police commissioner of our area, Shri Sadananda Date, who is an IPS officer. So he's going to come down to our college, and he will inaugurate that center in the august presence of our chairman, Archbishop Dr. Felix Machado. So if you get selected, you will have a chance to attend that program and witness that evening. So thank you very much. Over to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं वो अच्छी तरह से आपने जो बताया हुआ है उस राह पर जरूर चलेंगे। और उन्होंने ये तय किया है इनमें से सभी ने कि हमको ये
राष्ट्रीय केंद्रीय लोक सेवा आयोग और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की के परीक्षाओं की तैयारी करनी है। और आपने बताई हुई जो बातें हैं मुझे लगता है कि वो हमेशा याद रखेंगे और निश्चित तौर पर इनमें से कई सारे छात्र जो है आने वाले समय में ऑफिसर बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में हमारे महाविद्यालय की उपप्राचार्य प्रोफेसर सरिता कुरियन जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस मौके पर छात्रों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रोफेसर सरिता कुरियन मैडम जी। Thank you, sir. Respected Principal Dr. Somnath Vibhute, Chairperson of the committee, Convener Dr. Ramdas Tonde, sir, Professor Yvonne Sakrani, Professor McNoble de Cruz, Professor Pretty Rose Madam, and my dear students. Welcome you all to this meeting to decide how you will become part of the journey of the UPSC MPSC Center. As already informed to you by Sir, being part of the center is not open to all. We are trying to trying to find out the best who would be able to come into the center. All of you are the best. So as the elimination round of the examination would be there, do your very best in the examination. Being part of the civil services or administrative services is a matter of pride for anybody who is part of the civil services. It is not an easy journey, but it is an achievable one. So as you all know, there is a lot of dedication, a lot of struggle that is required, and perseverance, not giving up, being ready to work continuously with your regular studies. And you all have shown your desire to be part of this center. So I welcome you all. With our team, we will try our level best. We have a very good librarian, Dr. Chaitanya Veer sir, also along with us in this committee. I forgot to mention his name. I'm sorry for it. So he is also part of this, and a person who can enable you with the resources that would be needed for you, guide you from where you can get the resources also. So we will stand with you and try to support you in your venture towards being part of the administrative services. So I welcome you all. Thank you, sir. Yeah. Over to you, Ramdas sir. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर है, स्टूडेंट्स यहाँ पर है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी एक एप्टीट्यूड टेस्ट ली जाएगी, एक योग्यता परीक्षा ली जाएगी और बहुत जल्द ली जाएगी, जो कि उसमें जो बेसिक चीजें हैं हर एक क्षेत्र की, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और ये ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक सवाल पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक करेक्ट होगा और बाकी 3 रॉन्ग होंगे। इस तरह की जो आपको पता है, इस तरह की परीक्षाएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है। तो 50 क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र से, जैसे कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर से 10 होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 10 होंगे और इंग्लिश 12th क्लास खास करके, और लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। तो ऐसे 50 क्वेश्चन की परीक्षा ली जाएगी और ये परीक्षा रविवार के दिन ली जाएगी। आज तारीख है आज 21। हाँ, आज 21 तारीख है। 22, 23 संडे का भी 24 को है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ 24 तारीख को, हाँ 24 तारीख को आपकी एग्जाम ली जाएगी, 24 अक्टूबर को, और उसकी डिटेल जो है आपको आपके ग्रुप पर मिल जाएंगे आपको। तो उसकी तैयारी जितनी हो सकती है आप कीजिए, क्योंकि आपका जो बेसिक नॉलेज है वो उसके माध्यम से चेक होगा। बहुत सर वन डाउट। हाँ बोलिए सर, वो जो एग्जाम होगी वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में? वो मराठी और इंग्लिश, ऐसा 2 लैंग्वेजेस रहेगी उसमें।
तो इंग्लिश भी है और मराठी भी है। हाँ, तो दो लैंग्वेज में, तो जिसको अभी इंग्लिश में समझता है वो, नहीं तो मराठी में फिलहाल। तो सर रविवार को। प्रिपरेशन कौन से हाँ लैंग्वेज में मोस्टली कर सकते हैं? हाँ, क्या हुआ सुधा, बोलिए। सर जो प्रिपरेशन है वो मोस्टली कौन से लैंग्वेज में होता है? मतलब इंग्लिश, हिंदी, नहीं नहीं, मराठी? ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो यूपीएससी एमपीएससी की, यूपीएससी की अगर बात करें तो उसकी प्रीलिम एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में होती है, और फिर मेन एग्जाम में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं। जो अपनी मदर टंग है उसमें भी आप कर सकते हो, जो रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेजेस, उसमें एग्जाम होते हैं। इवन आप इंटरव्यू अपने जो रीजनल लैंग्वेज है आपका उसमें दे सकते हो, तो बहुत सारी सुविधाएं उसमें है। कोई मतलब लैंग्वेज का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी जो हम एग्जाम ले रहे हैं तो हमारे पास अभी फिलहाल तो ये दो ऑप्शन है, इंग्लिश और मराठी का। तो उसके माध्यम से हम आपके एग्जाम लेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और बहुत आसान भाषा का इस्तेमाल किया हुआ होगा, बहुत हार्ड नहीं होगा। ऐसी होगी कि आपको सबके समझ में आएगी, आपके कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उतनी, ठीक है। और इस तरह से 50 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसका टाइम टेबल वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमिंग होगा उसका, आपके ग्रुप पर आपको पता चलेगा। और ये एग्जाम जैसे प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर है हमारा, उसमें हम लेते हैं, जिसमें ऑनलाइन आप एग्जाम देंगे और ऑनलाइन सुपरविजन भी होगा। तो आप ये जो एग्जाम दे रहे हो वो दिखेगी हमको, और आपका कैमरा ऑन रहेगा मोबाइल का, ठीक है। तो 1 घंटे की एग्जाम रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का समय रहेगा। तो आप जो मैंने बताया कि जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 10, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 10, इंग्लिश 12 का इंग्लिश, और लॉजिकल रीजनिंग, और हाँ, तो ऐसे 50 क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चन एक एक इसके ऊपर हम पूछेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में और किसी को कुछ सवाल है किसी के मन में तो आप पूछ सकते हो परीक्षा को लेकर। और ये परीक्षा में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, अभी क्वालिफाइंग का परसेंटेज क्या होगा ये स्पर्धा परीक्षा समिति तय करेगी कि क्वालिफाइंग परसेंटेज आपका क्या हो, कितने मार्क्स हो क्वालिफाई करेंगे आप। और जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी ग्रुप पर, और उसके बाद फिर वो स्टूडेंट जो है इस सेंटर के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। तो आपके पास 1-2-3 दिन का समय है, तो आप तैयारी कीजिए और ये एग्जाम दीजिए, ठीक है। वेदक, कृतिक वेदक, बोलिए। सर आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ, बोलो। हाँ हाँ सर, नेगेटिव मार्किंग हो। बोलो कृतिक। हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। असल में जो परीक्षाएं होती है उसमें, हाँ, यूपीएससी एमपीएससी में सर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन हम ऐसे कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखने वाले, ठीक है। आपका थोड़ा बेसिक नेगेटिव नॉलेज चेक मार्किंग करने होगा के एग्जाम में। लिए, हाँ, ये परीक्षा बोलो। आप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है कृतिक। हेलो, ठीक है, आप बाद में सवाल पूछ लेना। और कोई किसी को कुछ बोलना है स्टूडेंट्स? हाँ सर, प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स लगेंगे वो हमें खुद परचेज करना है या कॉलेज प्रोवाइड करेंगे? कभी अभी इस एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, इस एग्जाम के लिए तो बस ये तो मैंने कहा ना, बेसिक नॉलेज पर आधारित ये सवाल रहेंगे, तो आप सर ऐसा ऑनलाइन। हाँ बोलो। बुक्स हम पढ़ सकते हैं सर, कुछ गाइड वगैरह एग्जाम के लिए? नहीं, गाइड वगैरह ऐसा नहीं है। मैंने जो आपको बताया ना कि जनरल नॉलेज है, तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत सारा मटेरियल है ऑनलाइन उपलब्ध, तो उसके माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। सर लाइब्रेरी में डॉक्टर अभी चैतन्य वीर सर, आप कुछ बात करेंगे इसके बारे में? यस सर, यस सर। हाँ प्लीज।
आप लाइब्रेरी में आ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, और आपको जो सर बट हमें तो आईडी, लाइब्रेरी का आईडी कार्ड नहीं मिला। नहीं, आप बुक वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल तो आप लाइब्रेरी में आ सकते हैं। एमपीएससी यूपीएससी की बहुत सारे बुक्स है, आप जनरल नॉलेज के भी बुक्स है यहाँ पे, आप आके देख सकते हैं फिलहाल। और आपको कॉलेज आईडी कार्ड मिलने के बाद आप होम इशू भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर टाइमिंग क्या रहेगा? 7 to 3 तक आप आ सकते हैं, और 7 आफ्टरनून 3। So I got a doubt. बोलो उजमा शेख। सर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाएगा हमारा, तो हम लाइब्रेरी में ऑफन विजिट कर सकते हैं ना, लाइक पढ़ने के लिए? हाँ कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी मैं गई थी बुक लेने, तो मैम ने मना किया कि कार्ड के बिना दे नहीं रहे, इसलिए। हाँ सर। वीर सर, होम इशू के लिए अभी फिलहाल नहीं दे सकते थे, अगर आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। अब आप लाइब्रेरी में आके मुझे मिल सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको। आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। वहाँ पे रेफरेंस बुक जो है वो बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पे, डिस्प्ले किए हुए हैं लेटेस्ट जो बुक्स लाए हुए हैं। ठीक है, 7 से 3 बजे के बीच में लाइब्रेरी खुली है, और जो भी आपको हेल्प चाहिए परीक्षा के लिए तो डॉक्टर चैतन्य वीर सर जो है ग्रंथपाल है हमारे लाइब्रेरियन, तो उनसे आप मिलिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बात करनी है स्टूडेंट्स? सर वो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका टाइमिंग रहेगा या हम कभी भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। उसका एक टाइमिंग रहेगा, एक ही स्लॉट में रहेगा। सभी जितने भी उसमें स्टूडेंट रहेंगे उस एग्जाम में, तो एक साथ एग्जाम होगी 1 घंटे की। ठीक है, जैसे समझो शाम को रखी हमने 5 बजे एग्जाम, तो 5 से 6 बजे के बीच वो एग्जाम होगी, और उसके बाद कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर कोई एब्सेंट रहा उसमें तो उसका चांस चला गया। फिर इस साल के लिए तो हम केवल अभी ये लास्ट अपना सेकंड बैच हम फिलअप कर रहे हैं, तो इसके बाद फिर कोई चांस नहीं मिलेगा किसी स्टूडेंट को, फिर अगले साल सीधा। ठीक है, तो इस एग्जाम को मिस मत कीजिए। ठीक है, एक ही स्लॉट में होगी एक साथ। और कोई? सर अगर हम मराठी में पेपर देंगे तो मराठी में कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? नहीं, ये लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश और मराठी एक साथ होगा। प्रश्न पूछा जाएगा तो मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा एक साथ। आपको जो सुटेबल है और उसमें पढ़ो, और उसका आंसर आगे। ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम, यहाँ पर लिखना वगैरह नहीं है कुछ, क्योंकि आपको केवल वहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप मराठी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, और उसका आंसर सामने रहेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट है उसको चूज करके आपको क्लिक करना है, तो रजिस्टर्ड हो जाएगा वो आंसर। ठीक है सर ये पेपर 50 मार्क्स का होगा ना? हाँ, ये 50 अंक के लिए बराबर है, और टाइम 60 मिनट्स का रहेगा। सर हाँ बोलो नंदिनी। ये हिंदी मीडियम में नहीं है क्या ये? नहीं, मराठी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज है ना? हाँ, 2 ही लैंग्वेज है। अब एक्चुअल मैंने बताया आपको कि यूपीएससी और एमपीएससी में, यूपीएससी में खास करके ये सुविधा होती है, हिंदी और इंग्लिश वाली प्रीलिम्स में, और मेन में तो बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन है आपको। ठीक है सर ये एमपीएससी वाला है ना एग्जाम? यूपीएससी एमपीएससी दोनों। हाँ, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते दोनों एग्जाम के लिए, दोनों के लिए है। ये बेसिक नॉलेज आपका चेक करेंगे, मैंने जैसे शुरू में कहा आपको। तो इस एग्जाम का बहुत फियर मत पालिए आप, ये बहुत कठिन एग्जाम होगी वगैरह, बहुत जनरल सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल इसमें आना चाहते हैं तो आपका कुछ तो भी उसके लिए पहले से थोड़ा सा तैयारी होगी, मुझे लगता है मन में आपके। बिल्कुल अनजान नहीं होंगे आप इसके बारे में। ठीक है सर पासिंग मार्क्स से रिलेटेड बुक मिलेगा क्या लाइब्रेरी में? हाँ मिलेगा ना, डॉक्टर चैतन्य वीर सर ने बताया ना आपको। और मैं बार बार पासिंग मार्क्स कितने हो गए? क्या हुआ?
पासिंग मार्क्स। हाँ, तो वो डिसाइड हम करेंगे बाद में। आपके एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कट ऑफ कहाँ पर लगाना है हमको। ठीक है, तो क्वालिफाइड कितने स्टूडेंट होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम कितने दिन में होगा? क्या हुआ? ये एग्जाम कितने दिन में होगा? मैंने बताया ना आपको, संडे को होने वाला है 24 अक्टूबर को। ठीक है, सर वो जो टॉपिक्स है मतलब जिस पे एग्जाम आने वाले वो प्लीज टेक्स्ट कर सकते हो क्या ग्रुप में? हाँ, मैं वो अभी से वो सारी चीजें मैं डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए उसको। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ हाँ। चलो, और कोई सवाल किसी स्टूडेंट के मन में, कोई परीक्षा को लेकर खास करके? सर अभी सर ने बोला कि इनॉग्रेशन होगा, उसमें वही लोग वो लोग ही आ सकते हैं जिनको जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, वही लोग आ सकेंगे, वही स्टूडेंट आ सकेंगे जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे वहां पर। तो इनविटेशन, हाँ बोलो सुधा, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ ठीक है, और कोई? ठीक है, मुझे लगता है सवाल खत्म हो गए हैं, और किसी के मन में कोई सवाल आता है तो हम लेंगे ही। प्रोफेसर युवान सर, हाँ बोलिए। कोंडे सर, हाँ हाँ, मला वाटतं परीक्षेच्या बाबतीमध्ये थोडंसं त्यांना आपल्याला अधिक माहिती द्यावी लागेल. ओके, कदाचित त्यांना आपण परत एकदा 1-2-3 मिनिटं मराठीत जर तुम्ही सांगितलं तर मला वाटतं त्या सगळ्या मुलांना समजू शकेल. परीक्षा आपली 24 ऑक्टोबरला होणार आहे. ओके, 1 तासाची परीक्षा असेल. ओके, त्याचं थोडंसं डिटेल मराठीमधून त्यांना द्या. मी काय करतो सर, मराठी, हिंदी, इंग्लिश तिन्ही लँग्वेज मध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपवर डिटेल त्यांना सगळं पाठवतो, म्हणजे ते सगळं व्यवस्थित वाचतील ते आणि त्यांच्या लक्षात येईल. आणि त्याच्या संदर्भात काही अडचण असेल तर मग मी पर्सनली बोलेल विद्यार्थ्यांना, ज्यांना काही अजून समजून सांगायचं. बरोबर, म्हणजे आणि त्याचे काय विषय असतील किंवा त्याची पुस्तकं त्यांना लायब्ररीत कशी मिळणार आहेत. हो हो सर, त्याचे सगळे किंवा ऑनलाईन रिसोर्सेस ते कसे वापरू शकतात. कारण आता आज बुधवार आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. हो, गुरुवार आहे. गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 2 दिवस ते प्रिपरेशन करू शकतील. हो सर, आणि रविवारी मग परीक्षा घेऊया आपण. हो सर, रविवारी आपण संध्याकाळी परीक्षा घेऊ, म्हणजे त्यांना अजून अधिक वेळ मिळेल रविवारचा पण. सर इतना कम टाइम प्रिपरेशन के लिए? नहीं, अभी ये बेसिक नॉलेज का है, मतलब कम टाइम आपको क्या जनरल नॉलेज दिया तो वही चीज है सर। हाँ, तो ये कम समय में ही एग्जाम हम लेने वाले हैं, ये तो उसकी खासियत है। हाँ, ज्यादा समय हम नहीं देंगे आपको। तो संडे को एग्जाम होगी 24 तारीख को। ठीक है, तो आप जितना अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप कीजिए। सर जनरल नॉलेज मतलब क्या क्या आने वाला है? जनरल नॉलेज मतलब अभी एवरीथिंग अंडर द सन। देखो अभिप्राय प्रिंसिपल सर ने बताया, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। ठीक है, तो आप घबराइए मत स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। आप आपके हाथ में स्मार्टफोन है और आप डालेंगे ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, यूपीएससी, एमपीएससी, तो हजारों की संख्या में आएंगे आपके सामने, तो आपको थोड़ा आइडिया तो मिल जाएगा उससे। ठीक है, ओके सर। हाँ बोलिए। जिसका सिलेक्शन होगा उससे वापस चांस नहीं मिलेगा? उसको इस साल तो नहीं मिलेगा चांस, अगले साल मिल सकता है। सर दोनों एग्जाम साथ में होने वाली है, यूपीएससी एमपीएससी? नहीं, वो एक ही है। हाँ, नाम वही दिया है, लेकिन मैंने कहा ना बहुत कठिन सवाल हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये जनरल एग्जाम होगी, या इसके माध्यम से हम आपकी योग्यता को चेक करेंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर युवान सखरानी मैडम, आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए छात्रों का।
सर आता तुम्ही बरोबर सगळं व्यवस्थित सांगितलेलं आहे. फक्त मला काय वाटतं ना, तुम्ही ह्यांचा जो ग्रुप आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण गेल्या वेळेची जी एक्झाम घेतलेली त्या मुलांना जे इन्फॉर्मेशन टाकलेलं ना, कोणत्या वेगवेगळ्या 10 वेगवेगळ्या सेक्शन मध्ये 10 प्रश्न येतील, ते जरा एकदा परत या मुलांना टाकून दिलं ना त्या ग्रुपवर, तर मुलांना बेटर आयडिया येईल की काय एक्झॅक्टली कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन, आणि ते क्वेश्चन सगळे इझी असतात, काय डिफिकल्ट क्वेश्चंस नाहीयेत. सो स्टूडेंट नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसा आप चिंता मत करना, एकदम इजी टाइप के सब क्वेश्चंस रहेंगे. जैसे कि आप अभी FY BA FY BCom वगैरह वाले स्टूडेंट्स हो, तो आपके लेवल के सब क्वेश्चंस रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा. सो यू नीड नॉट हैव टू वरी कि कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, जस्ट टू टेस्ट योर अबिलिटी कि आप उसके लिए पात्रता आपकी है कि नहीं. आई मीन फॉर एटलीस्ट गोइंग टू बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर वेंचर. क्योंकि हम लोग सभी स्टूडेंट्स को इसमें ले नहीं सकते. जो सीरियस है, जो फोकस्ड है, उन्हीं बच्चों को हम लोग लेने वाले हैं. तो हम लोगों ने ये एक पात्रता परीक्षा रखी है, इसके माध्यम से हम लोग दूसरे आपको सिलेक्ट करेंगे. ओके, जो सिलेक्ट नहीं होंगे यू नीड नॉट हैव टू वरी. ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी गाइडेंस नहीं मिलेगा, आप लाइब्रेरी में आके पढ़ाई कर सकते हैं, उसका कोई चिंता मत करना. बट द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी मोर फोकस्ड इन दिस स्पर्धा परीक्षा का जो हमने वेंचर चालू किया, उसमें हम लोग उन बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे. ऐसा नहीं कि जिसको नॉलेज चाहिए उनको हम लोग बिल्कुल नहीं कुछ बताएंगे, उनको टोटली साइड लाइन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं. आप हमेशा लाइब्रेरी में बैठ सकते हो और पढ़ाई जरूर कर सकते हो इस एग्जाम्स की. आप जब भी अगर ये परीक्षा पास हो जाते हो सब लोग, अगर आप में से कोई और सिलेक्ट हो जाते हो, तो जो संडे 30th को प्रोग्राम है उसमें आपको सब मालूम पड़ेगा ये एग्जाम किसके बारे में होती है और क्या. और वैसे भी आप सभी के हाथ में आजकल मोबाइल होता है, तो आप थोड़ी सी जानकारी निकालिए कि यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम क्या होती है. सब ज्ञान तो यहाँ बैठे हुए टीचर्स नहीं दे सकते, तो आपको खुद से थोड़ा एक सर्च मारिए कि एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम कैसी होती है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. ये सब आप एक बार थोड़ा सा नेट पे जाओगे ना तो आपको जरूर मिलेगा. एंड देन यू विल आल्सो फील कि हाँ मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उस तरह की आप मेहनत जरूर करेंगे, वो विश्वास हम सभी को है. ओवर टू यू सर. बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी चीजें जो है आपके पास ही है. हाँ, और बहुत इतने सारे, मैं अभी क्या बताऊँ आपको, YouTube पर इतने सारे छोटे छोटे वीडियो है, बहुत विस्तार से लेक्चर्स भी है इसके ऊपर. तो आप उसका इस्तेमाल करके इसकी जानकारी हासिल कीजिए. इस परीक्षा की तैयारी भी आप उसके माध्यम से ज्यादातर कर सकते हैं ऑनलाइन, जो अभी होने वाली है ना, तो अलग अलग जो सेक्शन से सवाल पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में बहुत कुछ है वहाँ पर, और किताब भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी लाइब्रेरी से. ठीक है, तो जैसे मैडम ने बताया आपको, वो सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखिए. और यहाँ पर क्या है कि हम सभी स्टूडेंट को नहीं ले सकते, हमारे लिमिटेशंस है. तो जो क्वालिफाई करेंगे उनको ही हम उसमें लेंगे, और बाकी स्टूडेंट जैसे मैडम ने कहा कि उनको नजरअंदाज नहीं करेंगे हम. जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर सकते हैं लाइब्रेरी में. वो सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो वहाँ पर. ऐसा कुछ नहीं कि केवल हम उनको देंगे और आपको नहीं देंगे, ऐसी कोई मतलब इस तरह की कोई बात वहाँ पर नहीं होगी. ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको जो चीज़ें चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगा, जो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं हुए हैं उनको भी. ठीक है, और मैकनोबल सर, प्रोफेसर मैकनोबल जी. हाँ सर. प्लीज आप जरा कुछ छात्रों को बताइए. अच्छा, गुड इवनिंग एवरीवन, and I think all guidelines are given by respected principal sir and by Ramdas Sonde sir, as well as by the vice principal madam. So
dear students, you start your work now. Prepare yourself for this preparatory exam, that is online exam, which is going to be held on coming Sunday. So you can read a simple general knowledge related study material. Online study material is available. Very basic questions will be asked. And as sir has said that we are having limitation, we cannot take all the participants who are present here for this meeting. So the admission or the enrollment for this phase will be based on merit basis. So those who will prove that they are very serious about this UPSC or MPSC preparation, they will only able to join this particular study thing. So it is my request to all the students, now you have to decide, okay, whether to be a part of this study cell or not. So you start your work, you can read the basic general knowledge from online resources. Online resources are available. And once you are qualified, you prove yourself that you are eligible to be admitted in this study cell, then definitely we are there to provide you all type of guidelines. All resources will be available, especially all type of books which are essential to prepare for UPSC MPSC exam. And a guidelines will be given. We will organize the IAS, IPS, IRS officers guidance sessions. And the other, simultaneously, dear students, you can on YouTube you can watch the testimonies of successful candidates, how they prepared, how they cracked the UPSC or MPSC exam. So definitely that is very encouraging and very inspirational videos are there, so that you can watch and you can prepare yourself for the upcoming examination. So I wish all the best for all the participants who are present here and who wish to appear for this online exam going to be held on coming Sunday. And whatever information you need, whatever questions you are having, that you can ask in this meeting, or later on also you can put in our WhatsApp group. So thank you very much, sir, for giving me this opportunity to express my views. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर मैकनोबल जी. प्रिंसिपल सर कुछ बोलना चाहते हैं. सर, प्रिंसिपल सर, हैंड रेज. Oh, sir, you can continue. You can continue. ओके सर. प्रोफेसर पीटरोज वेनेजिस मैडम जी, आप थोड़ा सा गाइड करिए. Good evening, everybody. Good evening, all the professors, principal sir, vice principal ma'am, and the committee members, and as well as the energetic students who are taking this initiative to, and showing your interest in your career to do MPSC and UPSC. So I just have to tell you all one thing, that this exam which we are going to conduct on Sunday, this is just an entrance exam. Okay, and this entrance exam is just for you all to see. We have to just see that how serious are you all regarding your career. Okay, so just because it is not going to be that difficult, so don't worry about it. It is just a very basic exam which you are going to consider, and it will just give us an idea see how much you all are ready to prepare yourself. Okay. And another thing, once you come into the don't think now another thing I have to just say, that those who will not be qualified, because right now this is a very tight spot and very few people we can take for this year, but you all still have time. You are in FY, so you all still have time, and you all can still prepare yourself, and you all can come in second year next year. Okay, and you all are GG college students, so don't think कि इसमें नहीं अगर हो रहा है तो हम लोग तुम लोग को किसी को कोई मार्गदर्शन नहीं करेंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. You all can approach. We are your teachers, and we'll be teachers as long as you're part of your GG college, and we will give you all the guidance you all want.
Okay, this is a special focus study group. Okay, it is a focus study group for those who are serious towards their career, who wants to make the career in MPSC and UPSC. Okay, so that is the reason why we are conducting this entrance exam. All right. And if you have any other doubts regarding that, you all can put it in your group. We have made this group. You can put in the group. Okay. Ramdas sir is always active. He will always tell you all. And we will also tell you all ki whatever issues you all have or problems you all have, we will also help you all in that. Okay. So all the best. And what you all can study is, you can go on Google, you can type latest UPSC, MPSC previous papers. You can go for previous papers and study those previous papers. That is the best way to study. Okay, so you all can study all the previous papers and focus on that. So short term में तुम लोग को अगर लगेगा कि क्या, previous paper? Google बाबा पे जाओ बाबा. Google is your best answers to all the solutions. Go on Google, you will get, just type UPSC previous papers. That's it, and you will get all the previous papers to study. Okay? All right. Ma'am, is there any limitation? Sorry? Is there any age limitation? सर इनका आवाज अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, या फिर जो आप असल में एग्जाम देंगे उसके लिए, किस लिए पूछ रहे हैं आप? नो सर, जो एग्जाम देंगे वो उसके लिए. अभी जो संडे का एग्जाम देंगे उसके लिए? यस. हाँ, उसके लिए कोई नहीं, एज ग्रुप का कुछ नहीं है इससे. ठीक है, जब मेन एग्जाम देंगे वहां पर एज लिमिटेशंस होता है तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी आपको बहुत वक्त है, आप एज बार नहीं होंगे और 10-12 साल. ठीक है, you still have to improve yourself. So this is just an initial screening. This is not your final exam. अभी दिल्ली दूर है, तुम लोग को अभी और प्रिपेयर करना है. ये तो शुरुआत है, सही बात है. हाँ. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पीटरोज मेनेजिस मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मैडम ने कही हुई बातें आप जरा ध्यान रखो. ठीक है, जितनी भी ये बातें यहाँ पर हुई है, जो जितना भी गाइडेंस आपको किया गया है इस परीक्षा के बारे में, तो वो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी है फिलहाल तो शुरुआत में. और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी धीरे धीरे. एक ही मीटिंग में तो बहुत सारी चीजें संभव नहीं हो सकेगी. और जैसे सर और मीटिंग होगी? हाँ, और मीटिंग कब होगी? जब सिलेक्शन होगा तब होगी शायद. जरूरत पड़ी तो, नहीं तो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास अभी समय वैसे कम है. 30 तारीख को अभी इसका उद्घाटन होने जा रहा है इस केंद्र का. तो जरूरत पड़ी तो एक मीटिंग हम करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो. नहीं तो उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो आपके संपर्क में हम हमेशा रहेंगे अलग अलग माध्यमों से. तो सिलेक्शन होने के बाद कोशिश करेंगे एक मीटिंग लेने की, ऑनलाइन ही रहेगी ज्यादातर वो. ठीक है, और कोई सवाल है किसी का, स्टूडेंट का? डॉक्टर चैतन्य वीर जी, आपको कुछ कहना है? ग्रंथपाल चैतन्य वीर सर. Yes. Good evening to all of you, Principal Sir, Vice Principal Madam, Donde Sir, McNoble Sir, Rose Madam, and all dear students. So you have a great opportunity to learn something new and gain a lot of knowledge through this exercise. That is the entrance exam. This is not only entrance exam. You can learn and you can read a lot of things for preparation for the examination. And the base part of this is the entrance exam. So this is the beginning of your journey. So that is a new beginning of your journey. So this is the base part to you. And I remember the quotation of Dr. APJ Abdul Kalam. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. End is not the end. In fact, end means the effort never dies. So if you get a no as an answer, remember no means the next opportunity. So student, this is the best of luck for the examination. And our library is open from 7 to 3 p.m. You can sit in the reading hall. You can learn a lot of new concepts with the magazines.
journals, and latest reference books. So best of luck. Over to you, Sanjay sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चैतन्य वीर सर। और हमारे ग्रंथपाल जो है आपको ये मटेरियल तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ई मटेरियल भी बहुत सारा है सर के पास, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है? I would like to add one thing. So our library has provided the service that is the e-books and e-journal service. That is the name, that is the end list, and then if you are interested, that is a paid service, but it is a free for you. Our college management principal sir has subscribed this service for you, so you can take the benefit of this service. You can visit the library. I will guide you how to browse that particular databases, how to download the e-books and e-journal. So it will be definitely helpful to the exam purpose and for your next 3 years. Yes, thank you, Sanjay sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है क्या किसी भी चीज के बारे में? अगर है तो आप पूछ लीजिए। तो अभी समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, अभी मीटिंग को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अगर कोई सवाल है आपके मन में स्टूडेंट्स, तो आप पूछ सकते हो। एक थोड़ा वक्त ठीक है। हाँ वही तो चलिए कुछ सवाल कारण एका ह्याच्यामध्ये काही सवाल सगळे त्यांचे बरोबर है। ठीक है। तो स्पर्धा परीक्षा अध्ययन मार्गदर्शन केंद्र की इस मीटिंग में आप सभी उपस्थित रहे। स्पर्धा परीक्षा समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं मैं। और जितने भी छात्र यहाँ पर उपस्थित रहे इस मीटिंग में, और आपने बहुत शांति से सुना और अपनी जिज्ञासा भी यहाँ पर व्यक्त की कुछ स्टूडेंट ने, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर। आप लीव कर सकते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चला सर। ओके वन मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर चैतन्य वीर सर, प्रोफेसर मैक्नोबल जी, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीव करो। ओके, थैंक यू सर। चलो, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू मैम। मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू।